Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to start the first topic of industrial chemistry, basic principles and parameters for industrial plant, unit operations and unit processes. This whole topic will be divided into 3 lectures. In this lecture 1, we shall be discussing the first part. Here, as you already know, in lecture 1 you have studied the unit operations, size reduction, size enlargement. In this lecture we shall discuss unit operations, separation of materials, magnetic material, froth flotation, fractional distillation, and also a brief introduction of the unit processes. We shall start in this lecture and we shall complete that one in the next lectures. Now we are going to discuss the separation of materials. So in the previous lecture we have studied about the size enlargement and size reduction, 2 unit operations we have studied. Now we are going to discuss separation of materials here. Here we shall see how can we separate the materials. In the slide of contents you have studied that there are different processes used for separation of materials. Now, first of all, depending upon the physical properties of the products, we follow the methods to separate those products. So, the desired products are separated from the byproducts by the following methods depending upon the physical properties of the products. Now, one of them is the method magnetic separation. यानी कि अगर हम मटेरियल्स अपने प्रोडक्ट्स को बाय प्रोडक्ट से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि हम हमारी प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. अगर वो मैग्नेटिक है या मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है हमारा प्रोडक्ट, तो फिर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. If a mixture containing magnetic materials and non-magnetic materials is subjected to a magnetic field, there is a competition for the particles between several forces, namely magnetic, inertia, gravitational and interparticle forces. अब क्या होता है, अगर हमारे पास मिक्सचर है चीज़ों का जिसमें से कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो होंगे वो कंपटीशन में आ जाएंगे, उन पे कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी. उनमें से किसी पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी, किसी पे कम करेगी, किसी पे बिल्कुल नहीं करेगी. इनर्शिया एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करेंगी ग्रेविटी की वजह से, और इंटर पार्टिकल की अपनी जो आपस में अगर वो मैग्नेटिक हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सारी फोर्सेस उन पे एक्ट करेंगी. 3 products can be obtained during magnetic separation: a strongly magnetic product, a weakly magnetic middling product, a non-magnetic tailing product. Separation is carried out either by with the help of a by dry method. You can say that using a belt, lifting magnets, or the separation can be wet using drum magnetic separators. तो जब हमारे पास ये हमने कहा कि ये सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगी, हमारी जो प्रोडक्ट होती है तो
तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन जब करेंगे तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक प्रोडक्ट होंगी, या वो वीकली मैग्नेटिक होंगी, उनको इन्होंने मिडलिंग्स प्रोडक्ट कहा हुआ है, या वो बिल्कुल ही नॉन मैग्नेटिक होंगी, टेलिंग। ये विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन बात की हुई है कि वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक होंगी या मिडलिंग्स होंगी जो वीकली मैग्नेटिक होंगी, या नॉन मैग्नेटिक और टेलिंग जो पीछे रह जाती हैं। वो कैसे हो आगे जब आप बेल्ट के ऊपर उनकी मूवमेंट देखोगे तो यू विल कम टू नो दैट कि ये किस पैरामीटर्स में बात हो रही है। 2 तरह की हो सकती है सेपरेशन। ड्राई भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ड्राई करने के लिए हमें बेल्ट लिफ्टिंग मैग्नेट्स चाहिए, हमें वेट भी कर सकते हैं। वेट के लिए हमें ड्रम मैग्नेटिक सेपरेटर्स चाहिए होते हैं, अगर हम वेट करके वेट अपना रखते हुए मीडियम हम उनकी सेपरेशन करना चाहते हैं। तो नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस magnetic separation? Material to be separated is fed into the first conveyor. Above this conveyor is another conveyor with an electromagnet inside. The electromagnetic field decreases towards the right. अब आप नीचे डायग्राम देखें, उसमें क्या चीज़ है, 2 कन्वेयर बेल्ट्स लगे हुए हैं। अब इस तरह से होता है कि आप जो है जो मटेरियल सेपरेट करना होता है उसको फर्स्ट कन्वेयर के ऊपर रख देते हैं, ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है, और जो ऊपर कन्वेयर है इसके वो जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अंदर आप ये जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लेबल हुआ है अंदर एक आपको क्वाइल टाइप चीज़ नज़र आ रही है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जो है वो राइट लेफ्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हेन वी गोइंग टुवर्ड्स राइट वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब जो स्ट्रॉन्गली वीकली मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, strongly and weakly magnetic materials are attracted and picked by the magnet. जो strongly होंगे ये जो weakly magnetic materials होंगे उनको ऊपर वाला जो above conveyor है वो उनको pick कर लेगा. The non-magnetic materials continue to be conveyed by the bottom conveyor and drop it in the first bin. अब जो non-magnetic materials हैं वो उसी नीचे वाले कन्वेयर पे मूव करते रहेंगे हत्ता कि वो ड्रॉप हो जाएंगे, जो फर्स्ट बिन आपको यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का नजर आ रहा है उसमें। As the strength of the electromagnet weakens towards the right, the middlings, that is the weakly magnetic material, lose attachment and drop in the middle bin. अब सारी बात है जो वीकली और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक थे वो ऊपर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कन्वेयर था जिसके अंदर वो कन्वेयर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसके साथ जो है वो अटैच हो गया। लेकिन क्योंकि राइट की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो जो वीकली मैग्नेटिक है वो सिर्फ आधे रास्ते तक वहाँ उसके साथ अटैच रहेंगे। जैसे ही वीक होगी मैग्नेट की स्ट्रेंथ, वो खुद भी वीकली मैग्नेटिक है तो वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। मिडलिंग्स जो होंगे वो दरमियान वाले वीकली मैग्नेटिक प्रोडक्ट वाले बिन में जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। The strongly magnetic materials drop off at the end of the electromagnet into the third bin. और जो सबसे ज़्यादा strongly magnetic materials होंगे वो जो होंगे वो उसके साथ अटैच रहेंगे, और जब बिल्कुल मैग्नेट की राइट पे आके स्ट्रेंथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी then they will drop down in the third bin जो कि एक्सट्रीम राइट पे है, that is magnetic जिसके ऊपर लेबल हुआ है magnetic product. The second one method for the separation of products is froth flotation. This is a process in solids, liquids separation technology that uses difference in wettability of various materials such as mineral ores. ये जो froth flotation का process है एक्चुअली ये solid और लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करेगा। किस बेसिस पे सेपरेट करेगा कि
जबकि सॉलिड और लिक्विड्स की वेटेबिलिटी या पानी के साथ इंटरेक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसके डिफरेंस की ऊपर वो जो है वो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करेगा. इसकी एग्जांपल है मिनरल ओर्स. Although these materials are generally hydrophilic, the surface properties of components they contain may vary within a very narrow range. So अगर जो उनके अंदर components होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है सरफेस प्रॉपर्टीज़ वो काफ़ी वेरी करती हैं. इनके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं. हाइड्रोफिलिक फिलिक फाइल्स मैनी लविंग. सो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग. तो वाटर लविंग होते हैं वैसे तो जो मटेरियल्स होते हैं ओर्स की फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, लेकिन इनमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी कर सकती हैं नैरो रेंज के अंदर. These small differences can be amplified by selective adsorption that makes some of the particles hydrophobic. ये जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इनके सरफेस प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं तो उनको क्या किया जाता है कि एड्सॉर्प्शन सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करा के उनको उन स्मॉल डिफरेंसेस को बड़े डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हाइड्रोफोबिक बना दिया जाता है. हाइड्रोफोबिया फोबिया मीन्स हेट करने वाले. हाइड्रोफोबिया पानी से हेट करने वाले, वो पानी से दूर रहते. सच हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स इन वाटर सस्पेंशन आर फ्लोटेड बाय अटैचिंग देम टू एयर बबल्स. तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं फिर इनको पानी की अगर सस्पेंशन मौजूद है तो क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं ये दे डोंट इंटरेक्ट विद वाटर, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये फ्लोट करेंगे. और जैसे वाटर सस्पेंशन बना लेंगे और फ्लोट करेंगे और अगर एयर बबल्स कोई बन रहे हैं पानी में तो उनके साथ साथ ये वहाँ पे पानी के से ऊपर फ्लोट करते रहेंगे. दे विल नॉट इंटरेक्ट विद वाटर. अब कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो पानी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोफिलिक नहीं है, उनको हाइड्रोफोबिक सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करके बना दिया जाता है और फिर वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते बल्कि फ्लोट करते हैं बबल्स के साथ. नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन दैट मेकिंग दिस पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक एंड फ्लोटेबल. Special surface active agent surfactant called collector or promoter is added to the suspension. अब इस सस्पेंशन में surfactant जिनको कलेक्टर या प्रोमोटर कहते हैं वो ऐड किया जाता है. अब सस्पेंशन कैसे बनी? जो पानी के साथ ज़्यादा हाइड्रोफिलिक नहीं थे मटेरियल्स वो थोड़े सस्पेंड हो गए और मज़ीद जो है वो उनको इस सस्पेंशन के अंदर सरफेस एक्टिव एजेंट जिसको सर्फैक्टेंट कहते हैं, सर्फैक्टेंट्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, उनको कलेक्टर या प्रोमोटर कहा जाएगा. अब कलेक्टर्स आर यूजुअली C2 to C6 कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर ग्रुप. ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन 2 से 6 तक होती हैं और पोलर ग्रुप्स इनके अंदर जो होते हैं वो कार्बन 2 से 6 तक कार्बन्स मौजूद होती हैं और इनके अंदर पोलर ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं. दे इंक्लूड फैटी एसिड, एमीन, सल्फोनेट्स. सो इसमें क्या क्या हो सकते हैं और भी हो सकते हैं लेकिन इसमें मेनली जो होंगे वो फैटी एसिड्स होंगे. फैटी एसिड्स अमीन्स होंगे. एमीन्स NH2 कंटेनिंग कंपाउंड्स और फैटी एसिड्स एज यू नो सल्फोनेट्स भी इसके अंदर जो है वो एग्जाम्पल इसके अंदर मौजूद इनमें से हो सकते हैं सल्फोनेट्स भी. Now the collector selection depend on the material being separated. अब आपने किस किस्म का कलेक्टर लेना है, either you need fatty acids और fatty acid amines और सल्फोनेट्स. ये डिपेंड करेगा
कि आपका जो है वो जिस मटेरियल को आप सेपरेट करें वो किस तरह का है। The collector molecule dissolves on the solid surface by the polar charge group. अब कलेक्टर मॉलिक्यूल जो होगा उस सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपने चार्ज ग्रुप की वजह से, अपने पोलर जो भी इसका ग्रुप होगा, अपने पोलर ग्रुप की वजह से जो कलेक्टर होगा वो सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कलेक्टर का मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिसॉर्प्शन, यानी कि उसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं। किस रिएक्शन को कि जो कलेक्टर मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर अपने चार्ज पार्टिकल की हेल्प से, अपने चार्ज ग्रुप की हेल्प से सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं। और द हाइड्रोकार्बन चेन इज फेसिंग द एक्वस फेज। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसकी जो है वो डायग्राम देख सकेंगे कि जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो एक्वस फेज की को फेस करेगी और खुद जो है वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। A layer, probably a monolayer of collector molecules, become attached to the surface of the particle because the hydrocarbon chain and the water do not mix. The coated particle surface becomes hydrophobic. By being hydrophobic, a particle repels water. एक जो होती है लेयर, उसको बोल रहे हैं कलेक्टर की मोनोलेयर, कलेक्टर मॉलिक्यूल की मोनोलेयर पार्टिकल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है। नीचे डायग्राम देखें आप, उसमें एक जो है वो पार्टिकल नजर आ रहा है सर्कुलर सा, उस पार्टिकल के ऊपर जो है वो कलेक्टर अटैच हुआ है। कलेक्टर की जो एक छोटी सी बॉल जो अटैच हुई है इस बड़े बॉल के साथ, वो जो है दैट इज द पोलर ग्रुप ऑफ द कलेक्टर, जो कि पार्टिकल की सरफेस के ऊपर अटैच हो गया है। ठीक है, और अब ये जो आपको नजर आ रही है zigzags apart, that is the hydrophobic group of the collector। तो हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है पानी के साथ, क्योंकि वो मिक्स तो होती नहीं है, इसलिए वो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा कलेक्टर हमारे पार्टिकल के साथ, तो ये जो है वो पार्टिकल हमारा हाइड्रोफोबिक बन जाता है। हाइड्रोफोबिक बन जाता है क्योंकि ये कार्बन की चेन उसे पानी में डिसॉल्व नहीं होने देती। दिस रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल सरफेस and the water and has diminishing the surface water interactions at solid interface। अब क्या होता है कि इस फोर्स के कलेक्टर के बाइंड हो जाने की वजह से जो पार्टिकल की सरफेस और पानी के दरमियान अगर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी भी सही तो वो भी वीक हो जाएंगी, और क्या होगा कि सरफेस और पानी का इंट्रैक्शन जो है सॉलिड सरफेस इंटरफेस के ऊपर, सॉलिड की जो इंटरफेस है पानी के साथ, सॉलिड सरफेस इंटरफेस के ऊपर पानी और सरफेस का जो इंट्रैक्शन होगा, पार्टिकल की सरफेस और पानी का जो इंट्रैक्शन होगा वो डिमिनिश हो जाएगा इस कलेक्टर की वजह से। This causes the displacement of water film from the wetted solid surface by air। इसकी वजह से पानी की जो फिल्म होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, हट जाती है वेटेड सरफेस के ऊपर से, और एयर बबल्स उसके बीच में आ जाते हैं। In addition to the use of the collectors to change the surface property of the particles, other materials may be added to further modify either the particles to be floated or the particles that are to remain in the suspension। अब इसके अलावा collectors भी यूज किए जाते हैं और इनके साथ साथ सरफेस प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की चेंज करने के लिए और भी केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, ताकि पार्टिकल्स को मॉडिफाई कराना है ना हमने कि वो फ्लोट करें या फिर वो सस्पेंशन के अंदर रहें। तो अगर कोई और भी केमिकल्स जो हम ऐड करें कलेक्टर्स के साथ ताकि इसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, वो जो है उनको मॉडिफायर्स कहेंगे। Such chemical substances are called modifiers, which are modifying the particles to be floated or to remain in the suspension। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हम modifiers in addition to the collectors यूज़ करते हैं और कर सकते हैं।
फ्लोटेशन सेल, इफ वी सी द फ्लोटेशन सेल, अब हमने ये तो देख लिया कि हम जो है वो कैसे यूज़ करते हैं एक पार्टिकल को अपने, जिसको हमने सेपरेट करना है पार्टिकल्स को, उनको हम हाइड्रोफोबिक कैसे बना सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि फ्लोटेशन सेल, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज देयर इन द फ्लोटेशन सेल। The material is ground in water to a maximum 250 micrometer. It is introduced into the flotation cell. अब जिस मटेरियल को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह ग्राउंड करके पीस के हम उसको तकरीबन 250 माइक्रोमीटर्स तक उसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसको फ्लोटेशन सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। A frothing agent is added to create a generous supply of fine bubbles when air is sparged. अब आप नीचे यहाँ देख रहे हैं एक डायग्राम बनी हुई है फ्लोटेशन सेल, उसमें हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं एजिटेटर और हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बॉटम पे फोबिक पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, जो इसके कॉर्नर्स पे ऊपर जो हमारा सेल है, सेल के ऊपर जो है वो साइड आर्म्स से बने हुए उनके ऊपर, और एयर हमें नज़र आ रही है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो की जा रही है। तो मोटर भी है जो साथ में एजिटेशन कर रही है या उसको मूव कर रही है पानी को, ये जो भी इस सेल के अंदर मटेरियल है। सो फ्रोदिंग एजेंट डाला जाता है। फ्रोदिंग एजेंट इसलिए डाला जाता है ताकि बबल्स बनते रहें, जैसे एयर जैसे इस जगह से ऊपर जो बिल्कुल टॉप के ऊपर मोटर के साथ जो एक आर्म है वहाँ से एयर स्पार्च की जा रही है, तो जब एयर स्पार्च की जाए तो फ्रोदिंग एजेंट ऐड किया जाता है ताकि उसके साथ साथ बबलिंग होती रहे। और एग्जांपल ऑफ फ्रोदर्स इंक्लूड पाइन ऑयल, मिथाइल एमाइल अल्कोहल। तो ये जो है वो फ्रोदिंग करते हैं ताकि बबलिंग होती रहे। तो कलेक्टर एंड अदर एडिटिव्स भी ऐड कर दिए जाते हैं उसमें। आपने क्या किया, आपने मटेरियल को ग्राइंड किया है, उस फ्लोटेशन सेल में डाला है, और उसके बाद आपने फ्रोदिंग एजेंट भी डालते रहे हैं। एयर जब आप डालिए तो फ्रोदिंग एजेंट भी आपने डाला है, कलेक्टर भी ऐड कर दिया है, और दूसरे एडिटिव्स भी जो ज़रूरत है वो ऐड कर दी। तो द हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द एयर बबल इंटरफेस। अब एयर और बबल्स का जहाँ पे इंटरफेस होगा मटेरियल्स के साथ, तो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स जो होंगे वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पे बबल्स तो सारी बात है ऊपर ही आते हैं पानी की सरफेस के ऊपर, तो उनके जो इंटरफेस के ऊपर जो है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स जो होंगे वो एयर बबल्स के इंटरफेस के ऊपर जो होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे। द बबल्स विद अटैच्ड mineral particles rise to the surface where the material is removed. अब बबल्स ने आहिस्ता आहिस्ता राइज करना है और उनके साथ वो पार्टिकल्स भी अटैच हुए हैं, क्योंकि बबल्स जो हैं वो पानी के साथ तो हाइड्रोफोबिक हो गए हैं ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ कलेक्टर, तो वो फिर बबल्स के साथ साथ जो है वो मूव करते आएंगे ऊपर। Particles that are readily wetted by water, हाइड्रोफिलिक, टेंड टू रिमेन इन द वाटर सस्पेंशन। ऐसे पार्टिकल्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वो फिर पानी के अंदर ही रहते हैं, वो जो है वो वाटर सस्पेंशन के अंदर ही रहेंगे। दे विल नॉट कम विद द बबल्स। तो ओनली बबल्स के साथ कौन आएंगे, जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होंगे वो बबल्स के साथ ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से डायग्राम से ये बात क्लियर हो रही है कि हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स जो होंगे वो पानी से सस्पेंशन के अंदर रहेंगे। हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स उस एयर के साथ जो ऊपर से ब्लो करवाई जा रही है उस एयर के साथ साथ फोमिंग भी हो रही है, साथ फ्रोदिंग हो रही है, उस एयर के साथ साथ जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स जो होंगे दे विल कम अप, और वहाँ से ये साइड आर्म्स में से वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाएगा। Now as we have discussed the separation of materials, froth flotation process, and now the second one process, we have discussed two processes of separation of materials. Number one was that magnetic separation, and number two was that froth flotation process. Now in the case of separation of materials we shall discuss fractional distillation. Distillation is used to separate a mixture of miscible liquids which have different volatilities.
तो आपने लिक्विड्स को अब सेपरेट करना। लिक्विड्स भी कौन से? जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्स हुए हुए हों। तो अगर आप उनके लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल हैं, उनके मिक्सचर को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें उनकी वॉलेटिलिटीज डिफरेंट होनी चाहिए या उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए। Suppose a mixture with low concentration of the more volatile component is distilled and the vapor condensed. So, when a mixture with low concentration of more volatile component is distilled, जो component more volatile है उसकी concentration आपने low रखी हुई है, तो वो जब डिस्टिल करते हैं आप, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, जब आप उसको डिस्टिल करते हैं मिक्सचर में से, तो उसके उनके वेपर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। सारी बातें लो बॉइलिंग पॉइंट वाले तो उसके वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे। द कंडेंसेट विच वी रेफर टू एज डिस्टिलेट विल बी मोर कंसंट्रेटेड विद दिस कंपोनेंट देन द फीड। तो हमारे पास जो फीड मौजूद है, जब हमारे पास डिस्टिलेट कलेक्ट होता जाएगा तो सारी बात, जब हम दो कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन वाला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सो व्हेन वी आर सपोज अ मिक्सचर विद लो कंसंट्रेशन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, हम उसको डिस्टिल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो डिस्टिलेट है ज़्यादा जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन तो है ही कम, तो पहले तो उसी ने बॉयल होना है। लो जिसका जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो वो जब डिस्टिलेट में चला जाएगा तो फिर डिस्टिलेट जो होगा वो उसमें मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जाएगा, तो फीड की निस्बत उसमें वो ज़्यादा चला जाएगा। If we return the distillate to the distillation apparatus and distill it to second distillate, the distillate will be more richer in the more volatile component than the first distillate. अगर हम इस डिस्टिलेट को रिटर्न कर देते हैं डिस्टिलेशन ऑपरेटस में और डिस्टिल कर लेते हैं, यानी इस डिस्टिलेट को उठाया और इसको हमने दोबारा डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स में डाल दिया। अब हमारे पास क्या था, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला या ज़्यादा वॉलेटाइल था वो पहले ही डिस्टिलेट पैमाने में ज़्यादा मौजूद था क्योंकि वो जल्दी बॉयल होकर आ गया। तो अब वो जो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम उसे दोबारा डाल दें और फिर उसे डिस्टिल करें, तो फिर दिस डिस्टिलेट will be more richer in the more volatile component than the first distillate. तो अब दोबारा जब हमने उसको डिस्टिल किया तो अब जो नेक्स्ट सेकंड डिस्टिलेट आएगा उसमें जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट या लो बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले वाले डिस्टिलेट की निस्बत भी ज़्यादा होगा। इफ़ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी विल अप्रोच प्योर डिस्टिलेट ऑफ द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। अगर हम इसको डिस्टिलेट को दोबारा डिस्टिलेट करते रहेंगे तो हमें जो है वो जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो इस स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे कि वो हमें प्योर फॉर्म में डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम ने लो बॉइलिंग पॉइंट वाला या ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला कंपोनेंट फर्स्ट डिस्टिलेशन में ज़्यादा डिस्टिलेट में चला गया, डिस्टिलेट जो डिस्टिल होके हमारे पास रिसीव हो रही है फ्रैक्शन, वो डिस्टिलेट होती है। आपने उस डिस्टिलेट को उठाया, उसको दोबारा डिस्टिलेशन के लिए डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्टिलेट आया उसमें लो वॉलेटिलिटी वाला इस वक्त जो है वो 60% आया और ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला सिर्फ 40% आया। आपने इसको फिर डाल दिया डिस्टिल के लिए। अब की बार 80% लो वॉलेटिलिटी वाले डिस्टिलेट में आया, 20% जो है वो जो हमारे पास जो है वो कम वॉलेटिलिटी वाला जो ज़्यादा पॉइंट वाला आया। और जब हमने इस डिस्टिलेट को फिर उठा के डाल दिया तो फिर 100% हमें जो है वो नेक्स्ट डिस्टिलेशंस में 100% भी लो वॉलेटिलिटी या कम बॉइलिंग पॉइंट वाला मिल सकता है। The greater the relative volatility between the two components, the fewer
द नीडेड डिस्टिलेशन स्टडीज, जितना ही दोनों का आपस में वॉलेटिलिटी का डिफरेंस होगा उतनी जल्दी ही आपस में सेपरेट हो जाएंगे, उतना जल्दी हमें लो वॉलेटाइल जो है उसको सेपरेट करना या उसका डिस्टिलेट प्योर लाना आसान होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मिक्सचर कंपोनेंट्स आर क्लोज। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ये खास बात है कि अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट्स मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्लोज भी हों तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होती है। वॉलेटिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स आर क्लोज, जाहिर बात है बॉइलिंग पॉइंट अगर उनकी क्लोज है तो वॉलेटिलिटीज भी क्लोज है, लेकिन ऑपोजिट, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी कम है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। This is the case in petroleum refining. Industrially, fractional distillation is carried out in distillation columns, are also known as distillation towers. They are like many distillation stills stick together vertically. Industrially, fractional distillation जो होती है वो distillation columns में की जाती है और उनको distillation towers कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं जैसे बहुत से distillation stills जो हैं वो vertical एक दूसरे के साथ stick हों। ये अभी आप जो है वो देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में। ये you can see industrial fractionating plant here on the right side in the diagram, in the picture. ये ऐसे जैसे उन्होंने बताया कि vertically they are look like they are stake together vertically. अब ये कि फ्रैक्शनेशन कॉलम जो होता है वो बैच भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, एंड दे कैन बी मैनी इन सीरीज। तो बैच भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस एक ही दफ़ा जिनमें जो होता है एक ही दफ़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, या बैच भी हो सकते हैं इन बैचेस या इन पार्ट्स में जो है वो वर्क करें। फॉर डिस्टिलेशन टू टेक्स प्लेस इन अ डिस्टिलेशन कॉलम बोथ वेपर एंड लिक्विड flowing up and down respectively must be brought into intimate contact. अब अगर आप डिस्टिलेशन कॉलम में डिस्टिलेशन होने के लिए जो लिक्विड के वेपर्स बन रहे होते हैं और वो जो लिक्विड इट सेल्फ होता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स ऊपर आ रहे होते हैं और लिक्विड जो कंडेंस होकर नीचे जा रहा होता है, उन दोनों को इंटीमेट कांटेक्ट में ज़रूर होना चाहिए। This is done by packing the column with inert solids or installing plates at regular intervals toward the column height. ये इसके लिए जो है वो कॉलम को पैक कर दिया जाता है, इनर्ट सॉलिड्स में डाल दिए जाते हैं या फिर उसमें कुछ प्लेट्स इंसर्ट कर दी जाती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि हर दफ़ा मतलब पूरे कॉलम की हाइट में थोड़े थोड़े फासले पे वो प्लेट्स लगा दी जाएंगी। जैसे अगर वर्टिकल आपके पास कॉलम है तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो है थोड़े थोड़े फासले पे लगा दी जाएंगी। उसमें ये होगा कि व्हेन द वेपर्स जो कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं, वेपर्स जो ऊपर जा रहे हैं और लिक्विड जो कि कंडेंस होकर नीचे आ रहा है वो बार बार एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहेंगे ताकि एनर्जी जो है वो आपस में वो एक दूसरे के साथ उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो सके। स्मॉल डिस्टिलेशन कॉलम्स आर नॉर्मली पैक्ड व्हाइल लार्ज डिस्टिलेशन कॉलम्स आर प्लेटेड। मतलब किसमें अपने इनर्ट सॉलिड डालें। जो छोटे वाले डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पैकिंग की जाती है, जो बड़े डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं उनमें प्लेट्स डाली जा प्लेट्स उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं रेगुलर इंटरवल्स में। Plated columns we need to provide for both vapor path and liquid path and liquid। अब जो प्लेटेड कॉलम्स होते हैं उन्हें हर प्लेट के ऊपर वेपर पाथ और लिक्विड पाथ देना होता है, यानी उसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें, होल्स कर दें उस प्लेट में, वट एवर आप जो भी करें, दोनों को वेपर्स और लिक्विड को पाथ्स प्रोवाइड करना होता है उसमें। द प्लेट्स आर परफोरेटेड, परफोरेशंस की जाती हैं, चाहे उसमें होल्स कर दिए जाएं या उसमें स्लिट्स बना दी जाएं, whatever. So and the vapor passes through the perforations, vapors उन perforations से ऊपर जाते हैं और liquid flowing through the pipes और liquid flows through pipes known as downcomers next to the column wall। column wall के साथ ही pipes भी लगे हुए होते हैं जिनमें से liquid flow करता है down, उनको column wall के साथ ही लगे हुए थे downcomers उनको बोलते हैं, जिन pipes के थ्रू liquid जो है वो फ्लो लिक्विड जो है वो फ्लो डाउन करता है।
Now you can check the components of a continuous distillation column. Here a continuous feed is being applied from the center of the column, you can see, and there are plates, separation plates, you can see at regular intervals from one like from the bottom, one coming from the right and one coming from the left, right and left, and so until the top of the column. Then vapors are going out and they are going then at the top and they are just going into the condenser, and reflux is being provided, and there is a reboiler down at the bottom. So this is just a simple a continuous distillation column है जिसमें प्लेटें लगाई हुई हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है वो पूरे थ्रू आउट कॉलम में नज़र आ रही है. इनको सेपरेशन प्लेट्स कहते हैं, और जो वेपर्स ऊपर से जा रहे हैं उनको कंडेंस किया जा रहा है. कंडेंस करके जो है वो उनको कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके कलेक्ट किया जा रहा है, और नीचे जो है वो रीबॉयलर भी लगाया हुआ है ताकि अगर कोई लिक्विड आता है तो फिर उसको फर्दर बॉयल किया जा सके. अब यूनिट ऑपरेशंस, दूसरे यूनिट ऑपरेशंस जो हमने पढ़े, साइज एनलार्जमेंट, साइज रिडक्शन, सेपरेशन ऑफ द मटेरियल्स, और अब इसके अलावा और भी यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन. Now what happens in the electrostatic separation? The solids are separated on the basis of the difference in electrical conductivity of the components. Electrostatic separation में हम जो सॉलिड्स होते हैं अगर उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का कोई डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, उसकी बेस पर हम उनको सेपरेट कर लेते हैं. तो मिनरल ओर्स की ड्रेसिंग इसकी एप्लीकेशन है. सेडिमेंटेशन क्या एक यूनिट ऑपरेशन है सेडिमेंटेशन, एंड व्हाट हैपेंस इन द सेडिमेंटेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड मोस्टली बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस. यानी हम इसमें लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना चाह रहे हैं. दिस इज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, यानी आप किसी लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना चाह रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्सेस यूज करके. तो आप उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये यूज होता है. सेडिमेंटेशन का तरीका होता है कि आप उनको जो है वो घुमाते हैं अपने ऑपरेटर्स को, और वो वेट की बेस पर सारी सेपरेट हो जाता है लिक्विड, सॉलिड सेपरेट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेट. तो आप लिक्विड को अगर सॉलिड से सेपरेट करना चाहते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होता है, यू कैन डू सेडिमेंटेशन. फिर है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, जैसे लाइक शुगर मैन्युफैक्चर. सो इफ यू वांट टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन यू कैन यूज क्रिस्टलाइजेशन. देन इज अ सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और लीचिंग. अब सॉलिड और लिक्विड को आप कैसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद an inert solid by use of liquid solvent in which it is soluble. अब हम क्या करते हैं कि सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक हम सॉल्युबल सॉलिड जो है वो एक मिक्सचर से निकालना चाह रहे हैं, और वो एक इनर्ट सॉलिड में जो है वो उसकी हेल्प से हम एक लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें हम जो है वो जिसमें हमारा सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो हम उस लिक्विड में जब उस मिक्सचर में जब वो लिक्विड डाल देंगे तो हमारा जो सॉलिड जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है वो लिक्विड में आ जाएगा, और जो बाकी सॉलिड है वो अलग पड़ा रहेगा. तो इसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन. यानी हम एक लिक्विड डाल के अपने सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं. लीचिंग भी कहते हैं इसे, कि डिज़ोल्व होके कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में वहाँ से उस दूसरे सॉलिड से अलग हो जाए. मिनरल प्रोसेसिंग में ये सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या लीचिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. स्प्रे ड्राइंग क्या होती है? Now spray drying में a liquid that is containing a dissolved solid is sprayed and contacted with hot air which evaporates solvent yielding a powder product. अब क्या होता है कि एक लिक्विड है, उसके अंदर कोई सॉलिड है, आपने उसको स्प्रे कर देना है, और उस
कंटेक्टेड विद हॉट एयर के साथ उसको कांटेक्ट कर देना है और वो एवेपोरेट हो जाएगा, जाहिर बात है लिक्विड। तो फिर सॉल्वेंट जब एवेपोरेट हो जाएगा वहाँ से तो फिर आपके पास पाउडर प्रोडक्ट आ जाएगी। स्प्रे ड्राइंग कहते हैं आप, यानी कि आप एक लिक्विड जिसमें सॉलिड डिजॉल्व हुआ है उसको स्प्रे करा दें और हॉट एयर के साथ उसको इवेपोरेट करा दें वहाँ से, तो आपको नीचे से पाउडर मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, डिटर्जेंट्स, पाउडर्ड मिल्क, सिंथेटिक रेजन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये सारी जो है वो स्प्रे ड्राइंग के थ्रू होती है। लिक्विड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अब ये क्या तरीका है लिक्विड एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूट फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद अनदर इनर्ट लिक्विड बाय मींस ऑफ अनदर लिक्विड इन विच इट इज सॉल्युबल। अब अगर आप सेपरेशन करना चाह रहे हो लिक्विड सॉल्यूट की एक मिक्सचर से, एक इनर्ट लिक्विड के साथ एक मिक्सचर है, हम एक और दूसरा लिक्विड डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, वो आपस में मिक्सचर है उनका, हम एक और लिक्विड डालते हैं जिस लिक्विड इन दोनों लिक्विड्स में से जो ऑलरेडी आपस में मिक्स है वो लिक्विड इन दोनों में से किसी एक को अपने अंदर ज़्यादा डिसॉल्व कर लेगा। वहाँ से इसको जब हम उस ये दोनों लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स नहीं होते सपोज, तो ये दोनों लिक्विड अलग हो जाएंगे। जो ऑलरेडी लिक्विड पड़ा हुआ है वो दूसरे लिक्विड में आ जाएगा जिसमें वो सॉल्युबल है, तो वो उस लिक्विड के साथ से आप अलग कर सकते हो जिसमें वो ऑलरेडी मिक्स होके पहले पड़ा हुआ है। ये आपको पता चलेगा सॉल्वेंट रिकवरी एग्जांपल से, एप्लीकेशन से। रिमूवल ऑफ नेफ्थेनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पड़े हुए होते हैं। ऑयल के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑयल भी लिक्विड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी लिक्विड। आप कोई ऐसा सॉल्वेंट डालते हो जिसमें आपका एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है, तो ऑयल उसमें नहीं आएगा और आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो उसमें आ जाएगा आपके सॉल्वेंट में जिसमें वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो दिस इज मेथड यूनिट ऑपरेशन लिक्विड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रिमूवल, आप एक कंपोनेंट की रिमूवल करते हो गैस मिक्सचर से बाय डिसॉल्विंग इट इन अ लिक्विड। आपके पास एक गैस मिक्सचर है, आप उसको डिसॉल्व कर लें लिक्विड में, तो उसमें से आप अपनी जो गैस जो डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन गैसेस यूजिंग अल्केलाइन सोल्यूशन। आप अगर अल्केलाइन सोल्यूशन यूज करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड उस अल्केलाइन सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं होती हैं, वो उस अल्केलाइन सोल्यूशन में नहीं जाएंगी। तो आप एक गैसियस मिक्सचर से अपनी मर्जी की गैस जो है, जो कि पोलैरिटी की बेस पे आप जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन, जब आप लिक्विड यूज़ करोगे, अल्कलाइन लिक्विड यूज़ करोगे, तो फिर वो पोलर गैस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि हाइड्रोकार्बन उसमें डिसॉल्व नहीं होंगी। तो दीज आर द अदर यूनिट ऑपरेशंस विच आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। Now, after discussing all the unit operations, we have discussed two type of units in industrial processes: unit operations and unit processes. So now we come to the unit processes. Unit processes are the chemical transformations or conversions that are performed in a process. तो हमने ये पहले डिस्कस किया था कि यूनिट प्रोसेसेस बेसिकली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, केमिकल कन्वर्जन्स होती हैं। तो एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? एसाइलेशन, यानी कहीं पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना, अल्कोहलिसिस यानी अल्कोहल की हेल्प से स्प्लिटिंग करवाना या ब्रेक डाउन करवा देना, एक्सचेंज, अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप ऐड करवाना, एमिनेशन करवाना, इमाइन ग्रुप ऐड करना, एमोनोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिंग बनाना, कैल्सिनेशन करना, कार्बोक्सिलेशन करना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना, कॉस्टिजेशन करना। कॉस्टिजेशन मीन्स अल्कलाइन कुछ अल्कलाइनिटी किसी चीज़ में ऐड करना, कंबस्शन करना, जला देना किसी चीज़ को।
in the कैजुअल लैंग्वेज आई एम सेइंग कंबस्शन, जला देना। कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जो है वो किसी भी चीज़ का रिएक्शन करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कंडेंसेशन करना मीन्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा अपने रिएक्टेंट्स को कंडेंस कर देना, द रिमूवल ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन करना, कहीं से पानी रिमूव करा देना, डिहाइड्रोजनेशन करना, हाइड्रोजन रिमूव करवा देना। डिकम्पोजिशन करना, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देना मीन्स उसको उसकी कंपोजिशन उसको ब्रेक कर देना, वन वे वी कैन से डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देना, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स को अलग कर देना उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के। स्टेरिफिकेशन करना, एस्टर ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। फर्मेंटेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना। हाइड्रोलिसिस, वाटर के थ्रू स्प्लिटिंग कराना। आइसोमराइजेशन कराना और न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट बनाना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। पायरोलिसिस, ब्रेकिंग अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो दैट वाज जस्ट, मैंने इसको थोड़ा सा हिंट आपको साथ में दिए हैं कि ये क्या क्या जो है वो processes हैं. Further इनकी detail you can say, but these are all chemical transformations which we have discussed over here. So unit processes are the core of industrial synthetic chemistry and are dominant in organic processes. अब अगर बात करें इंडस्ट्रियल सिंथेटिक केमिस्ट्री का कोर जो होते हैं वो यही केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. वी विल लुक एट सम ऑफ द यूनिट प्रोसेसेस दैट वी आर लाइकली टू एनकाउंटर इन सब्सिक्वेंट लर्निंग एक्टिविटीज. तो इसमें आ जाता है पहले पॉलीमराइजेशन. तो जब पॉलीमराइजेशन ग्रीक वर्ड से आई है, दो ग्रीक वर्ड्स है, पोलिस विच मीन्स मेनी एंड मैरोस विच मीन्स पार्ट्स. सो पोली का मतलब है बहुत सारे एंड मैरोस मीन्स पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स. पॉलीमर्स का मतलब ग्रीक वर्ड्स की मीनिंग अगर देखे जाए तो पॉलीमर इज देयरफॉर अ सब्सटेंस हैविंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेनी स्मॉल आइडेंटिकल पार्ट्स नोन एज मोनोमर्स. तो फिर पॉलीमर क्या होता है कि जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स मौजूद होते हैं which are bonding together covalently in a chemical process known as polymerization, जो कि आपस में polymerization के थ्रू covalently bond हुए होते हैं. Now polymerization reactions. For polymerization to yield polymers with long chain high polymers, the monomers must number 1 be polyfunctional, that is contain as two reactive groups. Number 2, not give cyclic products by intramolecular ring closure because this will terminate the polymerization. तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं पॉलीमराइजेशन के लिए कि पॉलीमराइजेशन के होने के लिए, पॉलीमर्स यील्ड करने के लिए, लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए, हाई पॉलीमर्स बनाने के लिए मोनोमर्स के पास कम से कम दो ग्रुप्स होने चाहिए. शुड बी पॉलीफंक्शनल, दो ग्रुप्स उसके पास ऐसे होने चाहिए और वो साइक्लिक कंपाउंड्स ना बनाता हो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर रिंग क्लोजर के थ्रू बना ले तो फिर वो उसके दो ग्रुप्स नहीं रह जाएंगे, वो रिएक्टिव ग्रुप्स, तो वो आगे फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकेगा. तो पॉलीमराइजेशन के लिए उसको पॉलीफंक्शनल भी होना चाहिए और वो साइक्लिक प्रोडक्ट ना देता हो इंट्रामॉलिक्यूलर रिंग क्लोजर से, ताकि पॉलीमराइजेशन टर्मिनेट ना हो जाए. The next polymerization की details we shall be studying in the lecture 3.